पलसापरे। इन्होंने इंडिया को काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट किया है। हाउ डिड यू गो इनटू साइकोलॉजी? मुझे बचपन से 7 साल की उम्र से क्रॉनिक डिप्रेशन था। सर मैंने ये तो पूरी मेरी लाइफ हिस्ट्री। आई एम अ पर्सन जो हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कराए। भाई तुझे इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज पढ़ा लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, इसका कॉमन मतलब हम ये निकालते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और इसके बाद अगर वो व्हाट्सएप पर का फोटोग्राफ भी गायब हो गया तो हम ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कोई ब्लॉक कर दिया। इफ यू आर इन अ नॉन रोमांटिक और रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उस पे हम अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन करें? अपने आप को हमेशा यूनिक माने, स्पेशल माने। Everybody has some sort of anxiety, depression, OCD. अगर आप मेरे साथ बैठे हैं and if I see your behavior, तो मुझे शायद पता चल जाए कि this person needs some help. ऐसा कुछ हमारे पास ट्रिक है? आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर शिशिर पलसापरे, हु इज़ अ रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट। इन्होंने इंडिया को काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट किया है एंड ही हैज़ ऑल्सो टॉट मोर देन 20,000 पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन द सेम फील्ड। आज के पॉडकास्ट में हमने ये सीखा कि हम कैसे थॉट्स को चैनलाइज करके अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे रोमांटिक नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो लर्न कि डाउन द लेन 5 साल 8 साल बाद साइकोलॉजी एज अ मार्केट क्या प्रोस्पेक्ट्स लेकर आएगा विद द एडवेंट ऑफ AI. If you're interested in listening any of these, please listen ahead and I hope that you like it. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. We have Dr. Shishir with us. So, sir, starting the podcast, I'd like to see and hear about your journey. How did you go into psychology and you are now a psychotherapist. What's the whole idea? What was your kick? So initially I have been trained as a homeopathic doctor, and as you probably know that there's a lot of emphasis that they put on the psyche of the patient, the mind of the patient. Yeah. However, in standard medical schools, whether it's homeopathy or the mainstream medication or the mainstream medicine, there is very little training that is imparted to the students about eliciting mental symptoms, eliciting psychological symptoms, or how to interact with patients. So practical skills were missing. And I thought to get myself trained in psychotherapeutic techniques by joining courses. So I did my bachelor's in psychology, then I did my master's in psychology. But again, very disillusioned by the level of training that I received even in the post-graduation. Okay. And that's when I decided to get further training, went to the US, Albert Ellis Institute and Beck Institute. That's where I really got the practical training. Okay. But the training was so addictive, I would say. I decided to become a trainer and supervisor for psychologists. Oh wow. And then I brought the same training here in India, which is now I'm training other psychologists. I've created a lot of other trainers as well. Yeah. And the journey goes on, and there are some more things that I'll tell what is next. Sure. Also about the fact, आपने जो मुझे बताया that earlier I did not know you, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ and I was all the way in hostel, तो मुझे ज़्यादा knowledge नहीं था. But I would like to tell you that you're so famous in छत्तीसगढ़. मुझे मेरी sister ने आपका contact दिया. Even he was also trying for internship here. So she told me कि you should definitely talk to this person. He's really great. Then I searched about you. Then I got to know about you and your journey. It was so inspiring. Like whatever I saw in Morphic Minds and whatever I saw in Dr. Shishir Palsapare's page. So that was something. In fact, I and Mama were sitting last night and we were looking at your Instagram page. तो my mama pointed out this one thing कि even though he has studied in US, उनकी हिंदी देखो, he's so good in his हिंदी. तो I was like, yeah, that's what I was thinking. So really great. I'm humbled. I do not think कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी भी मैं अगर हिंदी में बात करना चाहता हूँ in front of audience, then I become conscious कि मैं ग्रामेटिकली ठीक बात कर रहा हूँ या नहीं, मैंने सही वर्ड्स यूज़ किए नहीं, और कई बार बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स भी किए हैं मैंने. But that's a part of it, yes. Yeah. And also going ahead, I just wanted to know, मतलब जैसे कि आपने बताया that you were in homeopathy first, and then it required कि आप like you go into the psyche of the patients. So that's why you started off with this journey.
बट अगेन देयर इज वन डिफरेंस दैट आई थिंक कि मतलब यू गो फॉर द सेक ऑफ गोइंग वंस, एंड एक चीज़ होती है दैट यू स्टार्टेड लाइकिंग, देन यू फील कि हाँ दिस इज़ फॉर मी. सो व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग कि दिस इज़ फॉर मी? वो एक स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये साइकोलॉजी मेरे लिए ही बनी है. राइट. मुझे बचपन से 7 साल की उम्र से डिप्रेशन था, क्रॉनिक डिप्रेशन था, जो 21 साल की उम्र तक डायग्नोज भी नहीं हुआ. जब हमें कॉलेज में 3rd ईयर में साइकेट्री पढ़ाया गया, उस समय जब डिप्रेशन का टॉपिक निकला तो मैंने कहा ये तो मेरी जिंदगी है पूरी. राइट. दिस इज हाउ आई हैव लिव्ड लाइफ. तो बस वेरी सेकंड डे उन्हीं साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक में मैं पहुंच गया जिन्होंने हमें पढ़ाया था. सर, मैंने कहा ये तो पूरी मेरी लाइफ हिस्ट्री आप देखिए. तो उन्होंने मेडिसिन शुरू की और विद इन अ मंथ मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. और ये एक मोमेंट था जब मैंने सोचा कि मुझे ये फील्ड करनी है. सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ कि जब एल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट में हम गए, उस वक्त जब ट्रेनिंग हमारी शुरू हुई, तो ट्रेनिंग के दौरान हमें साइकोथेरेपी भी रिसीव होती है, हमें काउंसलिंग रिसीव होती है. तो हमारी काउंसलिंग कोई करता है. तो उस समय एक काउंसलिंग सेशन में मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि जो सुपरवाइजर थी, उन्होंने मुझसे 1-2 वर्ड्स ही कुछ कहे थे. 1-2 सेंटेंसेस कुछ कहे थे, जिससे मेरी पूरी पर्सपेक्टिव जो था मेरे ट्रॉमा को लेकर या फिर मेरी अपब्रिंगिंग को लेकर या मेरे चाइल्डहुड को लेकर, जो मैं हर्ट बहुत दिनों से अपने दिल में समाये बैठा था, तो वो एक बहुत बड़े हॉट एयर बलून की तरफ हो गई. मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त मैं एकदम से रोने लग गया और मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. सो वो जो ग्रजेस थी, वो हर्ट था, वो सारा निकल गया. एंड फिर मैंने कहा कि हे भगवान, अगर 1-2 सेंटेंसेस से, सही जगह पर सही चीज बोलने से अगर किसी का पूरा लाइफ का टेंशन कम हो सकता है, तो ये तो बहुत ही पावरफुल टूल है. मुझे सीखना है इसको. तो ना सिर्फ मैंने दूसरों के लिए पर अपने लिए वहाँ सीखना शुरू किया. कि मैंने कहा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो मुझे सीख कर अपने आप डील करने हैं. तो पहला शुरुआत जो थी वो दूसरों के लिए थी कि भाई मेरे प्रोफेशन के लिए मैं दूसरों को हेल्प कर पाऊंगा. लेकिन दूसरा टर्निंग पॉइंट वहाँ था जब मैंने सोचा कि ये तो मेरी लाइफ भी चेंज कर सकती है. A business, not only a business, anything good can only grow when जब आप अपने ऑडियंस के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी कर रहे हैं. So if you can use the same product, for example, जो आप बना रहे हैं, if you can use the same product for yourself, then the product is really validated and trusted. क्योंकि आप खुद को कभी हार्म नहीं करेंगे. हाँ, ये तो है कि अगर मैं प्रोडक्ट खुद यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. राइट. दैट्स अ गुड आइडिया. एब्सोल्युटली यस. ऑल्सो आपने बोला कि आप 7 साल की एज से आपको क्रॉनिक डिप्रेशन था विच कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड टिल द एज ऑफ 21. तो आई थिंक आजकल के बच्चों को, एंड नॉट इवन बच्चे, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, अ लॉट ऑफ थिंग्स. जितना मुझे पता है, लाइक आई नो जस्ट लिमिटेड थिंग्स. सो जस्ट टेल मी अ फ्यू थिंग्स जिससे अगर आप मेरे साथ बैठे हैं and if I see your behavior or if I ask you some questions, तो मुझे शायद पता चल जाए कि this person needs some help. तो ऐसा कुछ हमारे पास ट्रिक है? इसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं. एक है कि हर किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी कुछ हद तक है या नहीं है. मैं कहूँगा हर किसी को प्रॉब्लमेटिक एंजाइटी, प्रॉब्लमेटिक डिप्रेशन नहीं होता है. ऑल्दो अभी 45% तक लोगों को प्रॉब्लमेटिक डिप्रेशन, एंजाइटी लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है. राइट. या फिर कोई ना कोई बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है. लेकिन एज अ भावना, जैसे हम एंजाइटी या घबराहट को एक नेचुरल इमोशन करके लेते हैं, तो अगर हम एंजाइटी बोलते हैं तो घबराहट होना ये हर किसी को होती है. और वो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी भी है. हमारा कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ कोई एडवर्सिटी लाइफ में हो गई तो हमें दुख होना, ये भी स्वाभाविक है. ये सारे नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो हमारी लाइफ का पार्ट है और वो ज़रूरी है. उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है. लेकिन जब ये नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए, बहुत तीव्र हो जाए, बहुत ज़्यादा समय तक चले, राइट, और उससे आपका हैप्पीनेस, आपकी रिलेशनशिप से, आपके काम पर अगर असर होने लगे, तो फिर हम कहते हैं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपको सीखना चाहिए कि आपके इमोशंस को कैसे आप रेगुलेट कर सकें, किस तरह से मैनेज कर सकें, आपके बर्ताव को कैसे चेंज कर सकें. और अगर कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर्स है तो उनकी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए.
ओके। तो काउंसलिंग की किसको ज़रूरत है, ये अगर आप पूछना चाहते तो मैं नहीं कहूँगा किसी को भी ज़रूरत है। ज़रूरत हमें सिर्फ ऑक्सीजन, फूड, वाटर, स्लीप इन चीज़ों की है, लेकिन काउंसलिंग से हर किसी की हेल्प हो सकती है, हर किसी को बेनिफिट हो सकता है। सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन था कि कोई टिप्स हैं जिससे हम पहचान सकें कि किसी को कोई इशू है क्या। असल में हमें उनका नेचर ऑब्जर्व करना चाहिए। उसमें हमें अगर कुछ अटपटा लग रहा है तो हो सकता है कि उन्हें हेल्प से मदद करने से उन्हें फ़ायदा होगा। सेकंड है कि अगर उनके बर्ताव में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी भावनाओं में सडन चेंज हमें दिखता है जो 15-20 दिनों से ऊपर चल रहा है, राइट, तो हमें अलर्ट होना चाहिए कि इन्हें ज़रूरत हो सकती है कि काउंसलिंग या फिर मेडिकेशन या फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन अगर हम करें। लेकिन हर कोई बीच बीच में ट्रैक से छूटता है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर तब होता है जब वो खुद रेगुलेट भी नहीं कर पाते, राइट, या फिर उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, लोगों से पूछताछ करें। कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चंस, नॉन जजमेंटल स्टांस, ये सब चीज़ से हेल्प होती है कि आगे वाला इंसान आपको खुलकर बताएं, राइट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें लोग खुलकर बताते नहीं हैं, वो अपने आप में रख लेते हैं। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सबसे कॉमन है। तो यहाँ लोग जाकर बताएंगे नहीं कि मैंने इन डॉक्टर के पास जाकर अपना डायबिटीज़ का इलाज कराया, या फिर शहर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास मैं गया था। जो प्राइड से बताते हैं, यहाँ वो नहीं बताएंगे कि मैंने शहर के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है। भाई तुझे इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो गई कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। सो हमें एक्टिवली पूछना पड़ता है, कई बार सेल्फ डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि हाँ मैं भी ऐसी फील करती हूँ, या फिर मैंने भी ऐसी सिचुएशन देखी है, तो तब जाकर लोग हो सकता है ज़्यादा खुलकर बात करें। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। आई हैड अ फ्रेंड, उसने मतलब जब मैं उसके साथ हॉस्टल पे रहती थी, सो शी हैड डिप्रेशन, दैट्स व्हाट आई न्यू अबाउट हर। बट जब भी उसको अटैक्स या पैनिक अटैक्स कुछ आ रहे हैं, तो शी यूज्ड टू से कि मतलब मेरे मन में ये चल रहा है दैट मेरे ब्रेन को ये पता है दैट नहीं, मैं सिर्फ एक एक्टिंग कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट हैपनिंग विथ मी, मैं सिर्फ अटेंशन सीक करने के लिए कर रही हूँ। सो शी सेड दीज थिंग्स टू मी। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो उसका कॉन्शियस बोल रहा है तो इज शी राइट, और वो उसके साथ जो हो रहा है मैं उस पर ट्रस्ट करूँ। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज विद दैट। कैन यू लाइक हेल्प मी कि वो कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, क्योंकि दो अलग अलग सिम्टम्स दिख रहे हैं। Exactly. एक तो आपने कहा कि पैनिक दिख रहा है, मतलब घबराहट है, Yeah. और दूसरे उसको खुद के थॉट्स हैं या दूसरे के थॉट्स है, पता नहीं है। हाँ. तो इसको थोड़ा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मैं Okay. क्लियर डायग्नोसिस नहीं दूंगा हाँ. जब तक हम पेशेंट से या क्लाइंट से पूरी तरह से पूछताछ नहीं करते, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये है है क्या, क्या? राइट। True. लेकिन हाँ, उनको इवैल्यूएशन की डेफिनेटली जरूरत है कि भाई हो क्या रहा है, पता तो चले कि एग्जैक्टली है है क्या। क्या, सही बात है। एंड यू ऑल्सो सेड कि इमोशंस मैनेज करना आना चाहिए। सो हाउ डू यू, मतलब व्हाट इज इमोशनल एजुकेशन फर्स्टली इन अ Excellent. वेरी बेसिक टर्म? देखिए, इमोशनल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है कि हमारी भावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। जो भावनाएं हमें बार बार फील करने में अच्छा लगता है वो पॉजिटिव भावनाएं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, प्लेजर है, कॉन्फिडेंस है, ये भावनाएं हम चाहते हैं तो हम उनको सीक आउट करते हैं। दूसरी होती है नेगेटिव भावनाएं जो हमें अच्छी नहीं लगती, उससे हमें तकलीफ होती है। तो नेगेटिव भावनाओं में भी दो टाइप्स हैं। एक हेल्दी नेगेटिव भावना होती है, फॉर एग्जांपल कंसर्न है, आपको रास्ता क्रॉस करना है तो आप इधर उधर देख कर रास्ता क्रॉस करेंगे, आप घबरा कर नहीं करेंगे, आप केयरफुल हैं, आपको उस चीज़ की कद्र है या फिर फिक्र है, तो आप रास्ता देख समझ कर क्रॉस करेंगे। लेकिन ये भावना भी हम कंसर्न कहेंगे। इसके काउंटर वाली भावना जो है वो है अनहेल्थी भावना, जो है वो एंजाइटी, जिसे हम घबराहट कहेंगे कि मुझे बहुत घबराहट होती है अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कंसर्न और एंजाइटी दो अलग अलग भावनाएं, लेकिन एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है। इसी तरह से बाकी भी भावनाएं हैं, जैसे उदास होना हेल्दी है लेकिन निराश होना अनहेल्दी है, राइट। ओके, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। हाँ जी। सो हेल्थी गुस्सा भी होता है, अनहेल्दी भी गुस्सा होता है। अच्छा, जेलसी भी जो है वो हेल्दी और अनहेल्दी भी होती है। अच्छा। इसके साथ साथ एनवी मतलब ईर्ष्या, वो भी हेल्दी और अनहेल्दी हो सकती है। जलन
जो जेलसी हाँ, हमको हाँ। कहते हैं, वो भी हेल्दी और अनहेल्दी हो सकती है। कैन यू एक्सप्लेन कैसे, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू? हाँ, मैं एग्जांपल्स दूंगा। सो फर्स्ट थिंग है कि हमें ये जानना चाहिए कि कौन से इमोशंस हैं। सेकंड है ये इमोशंस को कैसे शिफ्ट करें, जो अनहेल्दी से हेल्दी फील करे। लोगों को लगता है कि मुझे इमोशंस फील ही नहीं करने हैं, मुझे नेगेटिव भावनाएं आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें गियर शिफ्ट करना है, अनहेल्दी से हेल्दी पर आना है। और वो कैसे आना है ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि जो भी हमें भावनाएं आ रही है वो हमारी सोच से आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को घबराहट हो रही है 4 लोगों के सामने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, तो उनकी सोच ऐसी हो सकती है कि मैं मिस्टेक कर दूंगा और 4 लोग मुझे नेगेटिव जज करेंगे। लेकिन अगर उनकी भावनाएं, उनकी थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे गलती नहीं करनी है, पर अगर गलती करनी भी है तो हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव जज करें, कुछ लोग नहीं करें, राइट? ऐसे अगर थॉट्स है तो उनकी फीलिंग्स अलग रहेंगी। तो हम ये मानते हैं कि भावनाओं के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे थॉट्स हैं, हमारी विचार पद्धति है। तो हम कोई भी घटना से, कोई सिचुएशन से हम अपसेट नहीं होते हैं, हम उस सिचुएशन का क्या मतलब निकालते हैं, उससे हम अपसेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज पढ़ा लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, इसका कॉमन मतलब हम ये निकालते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, राइट? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमें या तो घबराहट होगी या गुस्सा आएगा। और इसके बाद अगर वो व्हाट्सएप पर का फोटोग्राफ भी गायब हो गया तो हम ये सोच सकते हैं कि हमने तो ब्लॉक कर दिया, राइट? तो अगर ऐसा मतलब हम निकालते हैं तो डेफिनेटली हमें नेगेटिव भावनाएं, अनहेल्दी आ सकती हैं। लेकिन अगर इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि बैटरी डेड हो गई होगी, नेटवर्क चला गया होगा, बिजी होगा, या फिर हमेशा आपकी तरफ भूल गया होगा, तो हमें अलग भावनाएं आएंगी, राइट? तो उस सिंपल इवेंट का मतलब हम क्या निकालते हैं, इस पर सारे भावनाओं का खेल है। वेरी गुड पॉइंट। ओके, अब जैसे आपने ये चीज़ बोला कि मतलब अगर हम मतलब थिंकिंग से हमारी भावना आती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मान के चलते, तो अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया तो व्हाट विल बी माई इमीडिएट थॉट विल बी ये कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। नाउ आई स्टार्ट फीलिंग वेरी एंग्री एंड आई हैव ऑल द नेगेटिव इमोशंस। बट अब मैं उस नेगेटिव इमोशन से खुद को शिफ्ट कैसे करूँगी पॉजिटिव इमोशंस विदाउट थिंकिंग, अगर चलो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया एंड आई नो दिस, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर उनका फ़ोन डेड भी हुआ होगा तो ऑन तो होगा, बट अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है तो दैट वोंट हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो मुझे फिर दिखेगा नहीं। तो अब उस टाइम पे हाउ कैन आई शिफ्ट माई इमोशंस? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हम 2 तरह के थॉट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। पहला होता है कोई सिचुएशन का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष का मतलब है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तो इसका निष्कर्ष जो है वो कि मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये निष्कर्ष सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो फर्स्ट लेवल हमारी एरोनियस थिंकिंग या फिर फॉल्टी थिंकिंग जो है वो निष्कर्ष पर होती है। इसका मतलब तो ये है कि हमारा वर्जन ऑफ रियलिटी। दूसरा होता है धारणा। धारणा का मतलब है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम इसके भी नीचे गहरी होती है। तो पहली गलती हम कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और वर्स्ट के सिनेरियो सही है तो इसके अंदर हमारी धारणा रहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं अनलवेबल हूँ, राइट? या फिर ये इंसान ही खराब था। तो ये धारणाएं हमारी होती है बेसिक, खुद के लिए, वर्ल्ड के लिए, फ्यूचर के लिए। ये धारणाएं अगर हमारी नेगेटिव हैं तो हमें गहराई तक जो है वो नेगेटिव भावनाएं आती हैं। सो पहले तो हम जानने की कोशिश करें कि मेरा निष्कर्ष सही है या गलत है। सेकंड, धारणाएं अगर आपको चेक करनी है तो खुद के बारे में नेगेटिव धारणा, दूसरों के बारे में नेगेटिव धारणा, वर्ल्ड के बारे में या फिर पूरे फ्यूचर के बारे में नेगेटिव धारणा कभी भी सही नहीं होती। उसके कुछ पार्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ पार्ट्स खराब होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं पूरी अनलवेबल हूँ तो ये डेफिनेटली धारणा गलत है, राइट? आपको कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप लवेबल या अनलवेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सब्जी है जो आप पसंद करती हैं? हाँ, भिंडी ले लेते हैं। और कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? करेला ले लेते हैं। करेला। तो इसका मतलब ये है क्या कि भिंडी बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है और करेला सबसे बेकार वेजिटेबल है, खराब वेजिटेबल है? नो। तो इससे क्या साबित होता है? आप
कि के मेरी टेस्ट choice के है। बारे में साबित होता है। इसी तरह से जब हमें कोई रिजेक्ट करता है तो उससे ये नहीं साबित होता कि मैं अनलवेबल हूँ, इससे ये साबित होता है कि उनकी टेस्ट को मैं सूट नहीं करती हूँ, True. राइट, या उनके टेस्ट को हाँ। सूट नहीं करता हूँ। तो हाँ। इस तरह से अगर हम धारणाओं को देखें हम्म। तो हम अपनी भावनाओं को चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। सो अब जैसे कि ये वाला रैशनल तो मुझे तब आया जब आपने मुझे समझाया, राइट। अब जब उस पॉइंट पे मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो एट द सेम टाइम मुझे ये तो लगेगा कि आई एम अनलवेबल, बट ठीक है, एक टाइम के बाद आई ऑल्सो फील द फैक्ट कि अगर मैं अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दूँ तो आफ्टर अ टाइम आई थिंक अबाउट द फैक्ट कि शायद आई वॉज नॉट द वन फॉर देम, या उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए किया तो दे हैड देयर पर्सनल थिंग, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट मी। बट ये काफ़ी बहुत पॉजिटिव सिनेरियो हो जाता है, बिकॉज आजकल के बच्चों को मैंने देखा है, फर्स्टली दे आर इन रिलेशनशिप इन अ वेरी यंग एज, एंड उसके बाद दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस, सेकेंडली, एंड थर्डली दे बिलीव कि अगर इफ दे आर विद समवन then they will completely think कि whatever that person says or whatever that person asks them to do, it's completely right. So I would just want you to tell कि मतलब because we are going in that direction, I'd like to ask you कि if you are in a relationship, not just love relationship, but also if you are in a relationship with which of मतलब लाइक रोमांटिक और नॉन रोमांटिक या रिलेशनशिप, नॉन रोमांटिक और रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उस पे हम अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन करें? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी एडोलेसेंस में या फिर जब हम कहेंगे कि बच्चे हैं जो 11-12 साल के ऊपर है, 18 साल के नीचे हैं, इनमें क्या होता है, बहुत सारी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक ही सिचुएशन को दो एंगल से देखना, अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग एक ही है, दूसरा कोई मीनिंग नहीं। सो ये एबिलिटी बहुत बाद में डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल ब्रेन अगर फुल्ली डेवलप हम कहेंगे तो 25 इयर्स के बाद में अच्छे से मैच्योर होता है। सेकंड है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं रहता है कि अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो इसके ये परिणाम होंगे मेरे लिए, दूसरों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन्हें वो दिखाई नहीं देता। उन्हें मायोपिया होता है। मायोपिया का मतलब है जिसे हम कहेंगे कि नियर साइट, अभी अभी का देखना है हमें, दूरदृष्टि नहीं है। तो वो भी डेवलप होने में टाइम लगता है। और उसके बाद में इम्पल्स कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कोई भी मन में चीज़ आए तो उसको इमीडिएटली कर लेना, राइट, तो ये कंट्रोल भी थोड़ा सा लेट ही डेवलप होता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे या एडोलेसेंट्स जो है वो रिलेशनशिप्स में गड़बड़ियाँ करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो बाद में उन्हें तकलीफ होती है। आपका सवाल था कि अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन करें। तो पहले से अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज को टारगेट करें कि न मैं इनकम्पिटेंट हूँ, मैं ना अनलवेबल हूँ, ना ही मैं वर्थलेस हूँ, मेरे अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। सो वो यूनिक हैं। अपने आप को हमेशा यूनिक माने, स्पेशल नहीं। एवरीवन इज यूनिक, नॉट स्पेशल। नंबर 2, नोबडी इज कम्प्लीटली गुड और बैड। और लोगों की वैल्यू हम गिन ही नहीं सकते। हम गोल्ड की वैल्यू गिन सकते हैं कि आज 1 लाख रुपए का 10 ग्राम आ रहा है, राइट, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं गिन सकते। तो कोई ज़्यादा वर्थवाइल है, कोई कम वर्थवाइल है, ऐसा सवाल ही गलत है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करें, अपने आप को यूनिक माने, अपने आप को ह्यूमन बीइंग माने, न ही अच्छा न ही बुरा, लेकिन अपने बर्ताव पर ध्यान दें कि मैंने क्या ऐसे बिहेवियर्स करने चाहिए, ऐसे क्या बर्ताव करना चाहिए जिससे मुझे हेल्प होगी, दूसरों को हेल्प होगी। मुझे अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है, अपने नॉलेज पर ध्यान देना है, मेरे स्किल्स पर ध्यान देना है, मेरे परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है, लेकिन एज अ होल पर्सन आई एम जस्ट ह्यूमन। अगर ये आई एम ह्यूमन वाला फिलोसॉफी लेकर चले तो हर कोई अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर पाएगा। आई एम अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। एंड व्हाई डिड यू से कि एवरीवनस यूनिक नॉट स्पेशल? उसका आइडिया क्या है? स्पेशल मतलब दूसरों से बेहतर, ओके। यूनिक मतलब हर किसी का कॉम्बिनेशन जो है प्लसेस माइनसेस का, वो एक यूनिक है, वो किसी और से मैच नहीं करता। जैसा हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है, स्पेशल नहीं है। हाँ, ओके, यूनिक है। अंडरस्टूड। टॉकिंग ऑन द सेम थिंग दैट यू सेड कि इमोशंस का ही मैं आगे ले रही हूँ। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम अ पर्सन जो हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आई क्राई। इफ़ मुझे गुस्सा आ रहा है, यू विल नेवर सी मी कि मैं गुस्सा कर रही हूँ किसी पे। आई विल सिट इन अ रूम, आई विल क्राई
I'll wake up, not wake up, like I'll stand up and I'll say ki done, now it's done, now I cried, now I'll stand up and do my work. So that's my thing. If something's very very good for me that happened to me, so what I'll do is I'll cry. So crying is one of the thing that helps me vent my emotions. So is it good? Is it not good? And if it's not good, then expressing the emotions, because I'm not expressing anger in the way anger should be expressed. I'm expressing anger in a way that is different from how people do it. So am I doing it in the right way, or is it affecting me a lot? You know the answer whether it's affecting you or not. पर मैं कहूँगा कि चलो मान लेते हैं आपको एक कोई डिश बनानी आती है, और एक ही डिश बनानी आती है, राइट? तो ये सही है या गलत है कि आपको ये डिश बनानी आती है, या फिर और ज़्यादा डिशेस बनाना सीखना अच्छा रहेगा? हाँ, इसी तरह से अगर आपको सेम इमोशन अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करना आपने सीखा तो वैरायटी आएगी, राइट? मजा आएगा, राइट? सो आई थिंक इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो आप कैसे भी करें, उसको हेल्दी तरीके से करना जरूरी है। हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना मतलब क्या, कि जिससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो, दूसरों को तकलीफ नहीं हो, नंबर 1। और उसमें आप ऐसा कुछ बर्ताव ना करें जो लंबे समय में आपको क्षति पहुंचाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिप्रेस्ड फील होता है, मैं चुपचाप रहता हूँ, किसी को बताता नहीं, लेकिन अकेले में ही मैं शराब पी रहा हूँ, सिगरेट्स ले रहा हूँ, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी को भी मैंने तकलीफ नहीं दी। अब ये इमोशनल एक्सप्रेशन किसी और को हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये मुझे हार्मफुल है, राइट? तो हम ये कहेंगे कि अपने बर्ताव पर भी ध्यान दें कि इमोशनल एक्सप्रेशन में हमारे बर्ताव सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन में भी हेल्थी और अनहेल्थी हो सकता है। कई बार सप्रेस करना भी हेल्दी नहीं होता है, कई बार एक्सप्रेस करना भी हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए हमें वो सही ढंग से एक्सप्रेस करना जरूरी है। Like we need to understand कि इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इमोशनल मैनेजमेंट मतलब रेगुलेशन, उनकी तीव्रता को कम करें और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए जो बर्ताव हम करते हैं तो वो भी हेल्दी हो, राइट? और आपने कहा कि आपका एक ही तरीका है, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, तो इट इज नॉट डिसफंक्शनल, लेकिन आप इसमें वैरायटी ला सकती हैं, राइट? कई बार पेंटिंग से भी गुस्सा निकाल सकती हैं, या फिर ब्लॉग लिख कर भी कर सकती हैं। Actually. अब ये पॉडकास्ट भी है, ये इमोशनल एक्सप्रेशन है। Very true. सो आपको ऑलरेडी आते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। True. Talking about one more thing that you said, कि इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में आप यू आर टेलिंग मी कि एक होता है रेगुलेशन एंड देन वन मोर थिंग इज एक्सप्रेशन। सो अब नाउ दीज टू थिंग्स आर समथिंग दैट आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ पर्सनस लाइफ, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस किसी के पास है, सो दे कैन excel not just in outer fields but also they can deal with themselves, they can be more self-aware. I feel that emotional management should be inculcated in schools as well. Absolutely. But how can we do it? Like, what should be the idea and how should we go about it?